बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज पाकिस्तान में 28 नवंबर 2016 है और मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबशर रज़ा हाजिर हूँ। आज जिस उन्वान पे गुफ्तगू करेंगे वो है बुज़ुर्गान दीन के जो हाथ चूमे जाते हैं, उलमाए कराम के जो हाथ चूमे जाते हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू आज हमने इसलिए रखा कि मैंने अपने फेसबुक के स्टेटस के ऊपर एक मज़ाह के रंग में एक पोस्ट लगाई है और पोस्ट है वो एक जुमला है और वो मैंने ये लिखा है कि हाथ चूमने और चमुआने पर पाबंदी लगनी चाहिए। हाथ चूमने और चमुआने पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये मैंने एक मज़ाह के रंग के अंदर ये अपने स्टेटस के अंदर एक पोस्ट लगाई है। तो इसके ऊपर काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की राय आई हैं, तो उनको हम यहाँ ज़ेरे बहस लाएंगे और आपकी भी राय लेते हैं कि आप क्या कहते हैं। जी फुरकान भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नज़ीर शेख साहब तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और मुख्तलिफ़ किस्म की राय, मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे। और पोस्ट हमारी ये थी कि हाथ चूमने, ये जो बोसा लेते हैं, हाथ चूमने और चमुआने पर पाबंदी लगनी चाहिए। जी हाफिज़ प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन साहब, हाँ साहब, आपने देखा हमने एक पोस्ट लगाई और उसके ऊपर आपका भी कमेंट था प्रोफेसर साहब। तो किस किस किस्म की राय आई है, किस किस किस्म के जनाब तबसरे हुए हैं, देख लिया आपने। तो हमने सोचा कि अभी बैठ के लाइव इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, कौन क्या कहता है। हाथ चूमने और चमुआने, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कुछ देर बाद इंशाल्लाह। जनाब, आज जिसने दाढ़ी शरीफ रखी हो और ऊपर इमामा शरीफ भी पहना हो, बड़ा खूबसूरत सा जुब्बा भी बड़ा प्यारा सा पहना हो, और बहुत फिर अजीब अजीब किस्म के शौक जो है ना वो फिर तशरीफ़ लाते हैं। 2 बजे के बाद करूँ तो अभी क्या है, अभी तो मैं वैसे बैठा हुआ था प्रोफेसर साहब, मैंने कहा चले, और मैंने अभी कमेंट देखे यार, उधर तो लाइन लगी हुई है बड़ी राय आई है, और मैंने कहा चले अभी ये मुकदी गल मुकाओ, हुणे ही बह जाओ तो फिर आके ना जनाब ये उत्ते गुफ्तगू करने।
تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جناب کہ جس نے یہ داڑھی رکھی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، کوئی پگ امامہ شریف بڑی پیارا سا پہنا ہے، اور زہ نصیب اس کو بولنا بھی تھوڑا سا آتا ہے، اور تقریر وہ اچھی کر لیتا ہے. تو اب مختلف قسم کے شوق اس کے اندر پھر جناب پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے. اب میرا جو نا اشتہار لگے تو اشتہار کے اوپر بڑا سا ایک میرا نام ہونا چاہیے، اور القابات اتنے ہوں کہ حضرت کا نام نہ پڑا جائے کہ حضرت کا نام کون سا ہے. تو 3-4 سطروں کے اندر تو وہ القابات ہوتے ہیں: قطب زمان، راضی دوران، فخر انسانیت، مبلغ یورپ. مجھے تو لقب بھی نہیں آتے یار. وہ سارے وہ لکھ کے نیچے بھی پھر نام اوپر ہوتا ہے، نام کے نیچے بھی نام نہیں ختم ہوتا، نام ختم نہیں ہوتا جی، نام ختم نہیں ہونے والا بھیا. وہ نام ہی کیا جو ختم ہو جائے. تو اور نیچے بھی پھر رحمت اللہ علیہ السلام، تو پتہ نہیں پھر وہ حافظہ اللہ، اوفیان ہو، اور پتہ نہیں کون سی وہ نیچے پھر چلتی جاتی ہے آگے تک. یہ تھا ذرا ایک شوق، یہ ایک شوق ہے. دوسرا شوق پھر پیدا ہو جاتا ہے جناب. مجھے اب بولنا آ گیا تو مجھے علامہ صاحب بھی لوگ کہیں. علامہ یہاں میں آپ کو بتا دوں. جی پروفیسر صاحب، میں ذرا اس کے اوپر روشنی ضرور ڈالوں گا. جو ہمارے صفوں کے اندر جو کھٹمل ہیں ان کی بھی تو نشاندہی ہونی چاہیے نا. کیوں ہے یہ غلطی کوئی بھی کرے، غلطی ہے پروفیسر صاحب، ہم روشنی ضرور ڈالیں گے. کوئی کرے تو کیوں کرے، دیکھیں نا نجائز فائدہ اٹھا رہے. اچھا جی، اب ایک شوق یہ بھی ہے کہ مجھے لوگ علامہ کہیں. علامہ ایک ہوتا ہے عالم، جاننے والا. اگر تھوڑا علم ہے یا تھوڑا سا زیادہ علم ہے تو اور زیادہ علم ہے، وہ عالم ہے. وہ عالم ہے، جاننے والا. علم کے بھی درجے ہیں، تھوڑے درجے کا علم، زیادہ درجے کا علم، اس سے زیادہ علم. تو جب زیادہ کرتے جائیں تو بہت زیادہ علم جب اکٹھا ہو جائے، بہت زیادہ علم آ جائے، وہ ہے علامہ. مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. مبالغہ رائی کر رہے ہو، بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. تو عربی کے اندر یہ مبالغہ یعنی جس کے اندر بہت زیادتی کر دی جائے کسی وصف کے اندر، اس کو مبالغہ کہتے ہیں. تو علامہ بہت شاذ و نظر ہوتے ہیں. علامہ کوئی خالہ جی کا کار نہیں ہے کہ جو مرضی بس چوکڑی لگا کے بیٹھ جائے میں علامہ ہوں. علامہ بننا کوئی خالہ جی کا کار نہیں ہے. جناب من پھر علامہ کے ساتھ وہ اس کے اوپر ہی بس نہیں کرتے. وہ صاحب کہتے ہیں جناب ادھر کوئی شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بھی ہونا چاہیے. ایک حدیث کے اوپر درس کیا دے دیں صاحب، شیخ الحدیث بن گئے. ایک قرآن کی آیت پہ تفسیر کیا کر دیے، درس قرآن کیا محفل کر دیے. دو تین چاہیے محفل وہ درس قرآن. ایک تو بورے والے میں کر لو، ایک وہ لاہور میں کر لو، ایک گجرالے میں. یہ شہروں کے نام ویسے ہی لے رہا ہوں. تو ادھر ادھر کر لو، بس 2-3 درس قرآن ہونے چاہیے. تو نام پھر اشتہاروں پہ آ جاتا ہے جناب کیا، شیخ القرآن. تو پتہ ہے شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہوتا کون ہے؟ شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کون ہوتا ہے؟ شیخ الحدیث تو شیخ القرآن جو ہیں ان کو تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، کتاب و قلم سے ہی ہمارا واسطہ ہے الحمدللہ. چھوٹے سے تھے جب سے یہ پڑھنا شروع کیا ہے تو آج تک یہی کام کر رہے ہیں. شیخ الحدیث شیخ القرآن کوئی آسان کام ہے بننا؟ پوری زندگی گزار دے کوئی قرآن کے اندر، اس کے درس و تدریس کے اندر وہ پڑھاتا رہا ہے، اس کی تفاسیر کرتا رہا ہے، اور قرآن کے متعلقہ جمی علوم کو وہ جانتا ہو. صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول مناظرہ، یہ جتنے بھی علم کلام کے ہیں، منطق، فلسفہ، یہ سارے علوم فنون سب جاننے کے بعد
सब कुछ जानने के बाद और वो बाकायदा दर्स देता रहा है तफसीर का अव्वल से आखिर तक। वो कई दफा पढ़ा चुका हुआ है, हजारों की तादाद में उसके शागिर्द बन चुके हुए हैं। अब वो चिट्टे चिट्टे उसके बाल आ चुके हैं दाढ़ी में, अब वो उसकी कमर भी थोड़ी सी झुक गई है। तो फिर भी इस लेवल पे जाकर भी हमारे उलमा जो थे वो भी अपने आप को शेखुल कुरान नहीं कहा करते थे कि मैं शेखुल कुरान हूं। कोई कहता था उसको रोक देते, यार नहीं करो, मैं शेखुल कुरान नहीं हूं। उस लेवल पर भी जाकर, उस दर्जे पर भी फायज होकर उलमा रोक देते थे हमारे। पढ़े आप पुरानी किताबें पढ़ें, रूहानी हकायात किताब है, पढ़ें आप, और बड़ी किताबें। रोक देते थे उलमा, ना करो भाई, हम नहीं है शेखुल कुरान। शेखुल हदीस जिसको लाखों हदीसें याद हो, हाफिजुल हदीस हो, वो हदीस का दर्स देता हो, हदीस के मुतल्लिक़ तमाम मालूम को जानता हो, हदीस से उसको ज़बानी मतन सनद के साथ याद भी हो, किसी रावी के बारे में गुफ्तगू हो तो फौरी तौर पे उसका मुआकबा कर सके। कोई खला जी का कार है, कोई आसान काम है? आसान काम है शेखुल हदीस बनना, शेखुल कुरान बनना, अल्लामा बनना, बहुत आसान है। जनाबे मन आज कल रबीउल अव्वल शरीफ आने वाला है, अभी देखिएगा इश्तिहारात जो छपेंगे। अलकाबत आपने खुद, नाम नहीं मैं किसी का लेता, ये मैं जनरली बात करता हूं, ठीक है? वो आपने खुद फैसले करने। हमारी कौम इतनी वो है कि जहनों के ऊपर वो गलबा है, एक जमूद तारी है, एक वो जिसको कहते हैं कुएं के मेंढक, डड्डू, खूह दे डड्डू, वो बन गए। और कि इतनी इंसानियत की तजलील हो गई है, हो रही है कि इसका मैं क्या इसके ऊपर तबसरा करूं। उन्वान हमारा ये था, हाथ चूमने और चमवाने पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये मैंने अपनी स्टेटस मुबशर हुसैन के स्टेटस में ये कल रात को मैंने सोते सोते मजाक किया, मजाक नहीं होता, वो दोस्त आपस में करते, मैंने वो लिख दिया। मैं कहा यार ये हाथ चूमने चमवाने पर पाबंदी लगनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई हज़ारों की तादाद में शागिर्द हैं, कई शहरों के अंदर जाके मैं पढ़ा के आया हूँ। फैसलाबाद के अंदर, चक जुमरा के अंदर, मोड़ एमनाबाद के अंदर, नारोवाल के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, अभी भी इधर भी। फिर हम पढ़ा के आए जनाब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ गुजरात के अंदर, इधर उधर मुख्तलिफ इलाकों में पढ़ाया है, कुछ अरसा पढ़ाया है, बहुत शागिर्द हैं। हमने आज तक इस पर सख्ती की है, कोई नहीं हाथ नहीं चूमना भाई, पीछे आ जाओ, हाथ क्यों चूमते हो हाथ, हमारे क्या लगा हुआ है, हमें क्या लग के आ गया, दो लफ्ज आ गए हैं तो ये इसका मतलब हाथ चूमने शुरू कर दो। तुम क्या घुस गया हमारे अंदर, क्या है, हमें क्या लग गया ऐसा कि हाथ चूम रहे हो, तुम झुक रहे हो, ऐसे चूम रहे हो। ये फैज असल होगा, शाह साहब के हाथ चूमेंगे, फैज आ जाएगा मुबशर शाह के हाथों के अंदर। क्या घुस गया इसके अंदर, कौन सी चीज अंदर जा रही है आपके अंदर कौन सी चीज जा रही है, क्यों चूमते हो हाथ? इज्जत अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जत अल्लाह और उसके रसूल के लिए। आज हाथ हम क्यों चुमवाएं? हम पापी लोग हैं, बदकार लोग हैं, और कभी हमने रोका तक नहीं, भाई छोड़ दो यार, नहीं करो ये काम, क्या कर रहे हो। किस्सा कहानी ये नहीं है कि ये जायज है या नाजायज, ना, किस्सा कहानी ये नहीं है कि ये हाथ चूमने जायज है या नाजायज, नहीं, जायज है, इसकी दलाइल भी हैं। मेरे इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने इसके दलाइल भी कायम किए हैं, और जमी उलमा ने इसके ऊपर दलाइल भी कायम किए हैं। जायज नजायज की बात नहीं, बात यह जिसके चूमे जा रहे। अब देखे जवाज की दलील तो आ गई, दलील ये रखी है कि जी जायज है, अब उसका अहल कौन है, इसकी तखसीस कौन करेगा, ये सवाल है। हाथ जिसके चूमे जा रहे उसकी तखसीस कौन करेगा कि ये अहल है भाई हाथ चमवाने का। और कभी उसने रोका? मैं अपनी बात करता हूं, मैं नहीं किसी की बात करता,
मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे बड़े शागिर्द हैं। हम ये हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन साहब मेरे शागिर्द हैं, अभी अभी तशरीफ फरमा है, ऑनलाइन हमारे पास पढ़ रहे हैं। और कई शागिर्द हैं हमारे पास पढ़ते हैं ऑनलाइन, हम दरस नामी चूंकि पढ़ाते हैं, ऑल वर्ल्ड के अंदर हमारे शागिर्द हैं। और जब वो दूसरे मुल्कों से आते हैं तो मिलने के लिए इधर भी आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। कभी नहीं हुआ रोक देते हैं, बल्कि हमारे मजाज को हमारे तलबा जानते हैं, वो हमारे हाथ चूमते ही नहीं है। उनको पता है कि नहीं भाई ये काम करना ही नहीं है, आगे से डांट पड़ जानी है। हाथ चूमने और चमुआने पर पाबंदी लगनी चाहिए। आज तो ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है कि पीर साहब, पीरजादा साहब, मुबलगे यूरोप और क्या वो नाम होते हैं भाई, वो साहब आए हैं, लोग बड़े, वो अदब होता है, वो अदब से ऐसे हजरत साहब वो हाथ चूमने के लिए आगे बढ़ते हैं, हजरत ने हाथ ही ऐसे ऐसे, हाथ मुसाफा करने का तरीका क्या होता है ऐसे, और ये अगली उंगलियां लगानी है ऐसे। इतनी जहमत नहीं उसको होती बेचारे को, उसको मैं बेचारा कहूंगा, ऐसा पीर और पीरजादा और ये जितने भी हैं बने हुए, कि वो सलाम तो सुन्नत के मुताबिक ले ले। अल्लाह के बंदे, तुम्हें सुन्नत के मुताबिक मुसाफा नहीं लेना आता, तू शेख बन गया, तू पीर बन गया, तुझे पीर बना किसने दी है? कड़वी बातें हैं, बड़ी कड़वी बातें, बड़ी कड़वी बातें हैं ये। अल हक़्क़ु मुर्रुन, सच कड़वा होता है। और सुना करें यार, आदत डालें, इतना नहीं वो इतना ना बन जाए ना, ये सच्ची बात हो गई है, ये बंदा सही नहीं है, ये भाभी है, ये भाभी है, ये देवबंदी हो गया, भाभी हो गया, ये देवबंदी हो गया, इसने सच्ची बात कर दी है। ना 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 ना, कोई अक्ल करें। लट्टू हो जाती है, लट्टू हो जाती है, हमारी कौम लट्टू हो जाती है फौरी तौर पे। हो जहां थोड़ा सा मजमा देखते हैं फौरी तौर पे उधर चल भाई। तकरीरें सुनने पर कोई पाबंदी नहीं, पीरी मुरीदी पे कोई पाबंदी नहीं, सारे काम करें, लेकिन कोई एक हद में रह के कोई एक तरीके से करें ये सारे काम। दुनिया कहां पे पहुंची है, लोग हमें तान कर रहे हैं, लोग यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, कितनी लोग वो कितने जनाब एक छोटी छोटी चीज को पकड़ के वो इल्जामात आयद करते हैं। हमारी कौम सोचती भी नहीं है। और दूसरी बात, ये हम रद्द नहीं करते, रद्द करें, रद्द करना चाहिए। जब रद्द करेंगे आप खुद उठ के रद्द करें। एक आपका भाई, सगा भाई गलती कर रहा है, कहें कि मेरे भाई आपने ये गलती की है, ये सही नहीं है, उसको रोकें। गलत को जब गलत कहना छोड़ देंगे उस वक्त फसादात आएंगे। गलत को भी गलत कहना छोड़ दिया। ये भी वो मैंने अपने स्टेटस के ऊपर लगाई है, शेयर की है कि वो शहबाज कलंदर साहब के मज़ार के ऊपर क्या हो रहा है। वो कोई उन्होंने कोई, मैं तो कभी गया नहीं, मुझे नहीं पता, वो कोई एक ढेरी सी बनी हुई है, उधर पत्थर लड़के मार रहे हैं। और वो ऊपर से माइक उसने पकड़ा, वो कह रहा है इधर जो है ना वो शैतान आया था, कंकरियां मारी थी, हजरत बीबी हाजरा भी इधर आई थी, हजरत इब्राहिम भी थे। यार ये क्या हो रहा है यार, अक्ल नहीं है तुम लोगों में। असल में सब जाहिल है, सब जाहिल। लाल शहबाज कलंदर और क्या ये बना हुआ है वो झूले लाल, वो जो मवालियों ने, चरसियों ने जब जो हलाकत, वो बुजुर्गों की बात नहीं हो रही। बुजुर्गों ने तो नहीं कहा था ये सारे काम तुमने आके करने, ये जो तुमने खराफात इधर इकट्ठी कर लेनी है तुमने, बुजुर्गों का कोई कसूर नहीं बीच में। ये तो कसूर तो उनका जो उधर वो जनाब कब्जा करके बैठे, जो ऊपर जाते हैं जोहला, उधर कोई भी आपको पढ़ा लिखा नजर नहीं आएगा। वो खवातीन इकट्ठी हो जाती हैं, कुछ इस तरह के मामले होते हैं। तो ये कुछ गलतियां उनको रोकना आपका फर्ज है। ये झूठे पीर, वो देखे वो थप्पड़ पीर एक आया था, वो थप्पड़ पीर पकड़ा गया, वो उसको नंगा कर दिया टीवी वालों ने पकड़ के, उसको कलमा तक नहीं आ रहा था। उसको वो कह रहा है, वो इंस्पेक्टर कहता है कलमा पढ़ के सुना, तो पता नहीं क्या पढ़ रहे। बताएं मुझे कि हमारी कौम कितनी अंधी हो गई है, झुक जाती है, फौरी तौर पे झुक जाती है।
जहां दो चार मजमा देखा, जिसकी जुब्बा दस्तार दाढ़ी देखी, लट्टू हो जाओ भाई, घूम जा भाई, झूम जा, इधर झूम जा। ये वली कामल। और जिसकी अकल नहीं होती, वो जो नाली के पास बैठा होता है, वो गारा मिट्टी निकाल रहा होता है, लोग कहते हैं ये वली है। ओ पागल है, उसका इलाज करवाओ उसको। वो नांगा है, नांगा शाह, आगे फिर शाह लिख देते हैं। यहां हमारे गुजराले के अंदर घोड़े बीमार होते थे, घोड़ों का दम करने वाला एक बाबा था, इधर करीब ही है, सारी दुनिया जानती है। अब जब वो मर गया, लोगों ने उसके नाम के साथ लिखे घोड़े शाह, बकायदा घोड़े शाह इधर है, वो घोड़े शाह। आगे इधर मैं छोटा सा था, स्कूल जाते थे, हमारे इधर नाले के पास एक नंगा दड़ंगा एक घूमा करता था, मर गया, उसको दफना दिया, उसका नाम नांगे शाह का दरबार अभी भी मौजूद है। मैं खुद शाहिद हूं। आगे शाह, नांगे शाह, घोड़े शाह। तो जो इतराज करते हैं वो सही करते हैं, उन इतराजात को भी समझें। वो अगरचे किसी और रंग में करते हैं, लेकिन हमारे अंदर खराफात हैं, उनको तस्लीम करना पड़ेगा। जिसका जुब्बा दस्तार देखा, मैं एक मिसाल दिया करता हूं, फर्ज कर लो यार, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया जितना इल्म है वो अल्लाह ने दिया, जितना इल्म है। मैं सैयद भी हूं, शाह हूं। शाहों का, सैयदों का जो अभी मां के पेट के अंदर नुतफा भी होता है, वो भी पीर होता है। वो तो आप भी समझते होंगे। हमें कहीं से पीरी मुरीदी लेने की जरूरत नहीं। पीरों का, ये सैयदों का बच्चा भी पीर होता है, क्योंकि इनका डायरेक्ट जो राब्ता है और सिलसिला नसब है, वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। कभी मैं आपको बताऊं, इतने मामले, मुझे कोई आज कह दे शाह जी मैं आपको खिलाफत देता हूं, ये आप करें, सिलसिला चलाएं, फिर आगे दुकानदार ये खोल लें छोटी सी, मैं कोई करोड़ दफा सोचूंगा कि यार मैं इस अहल हूं, मैं मुबश्शिर शाह, मैं इस अहल हूं, मैं पीर बनूं, पीर ज़्यादा बनूं, ये बनूं, वो बनूं। हजार किस्म के गुनाह मैं करता हूं, मेरी करतूतें ही खराब हैं, लोगों के सामने मैं शरीफ बनता हूं, अंदर खाने में बड़े गुनाह करता हूं, छुप फासिक व फाजिर आदमी हूं मैं, लोग मुझे बड़ा मुत्तकी परहेजगार समझते हैं, मेरे अंदर के मामला तो बड़े खराब हैं, मुझे अपनी वो उधर जो है ना वक्त पड़ जाना मेरी जान को कब्र में, हशर में, उधर मैं अपना हिसाब किताब दूंगा तो इन लोगों का दूंगा जो मेरे मुतल्लिकीन होंगे। ये है एक स्टेटस और ये है एक लेवल। आप मुझे बताएं, क्या दूसरे पीर ये सोचते हैं? कभी किसी ने सोचा हो कि यार तू अपना हिसाब किताब देगा, तू इनका देगा बेचारों का? ये तो कहते हैं मेरा ही आस्थान है, आ जाओ इधर ही आ जाओ, बस आ जाओ, सारे इधर आ जाओ, ये दूसरे सारे बेकार है, इधर ही आ जाओ, एक ही आस्थान है बस। बड़ी कोड़ी कोड़ी बातें कर रहा हूं मैं, तो जिसकी समझ में नहीं आती वो खामोश ही रहिएगा, बड़ी मेहरबानी। और मैं अपने सुन्नियत के प्लेटफॉर्म पे आके ये बातें कर रहा हूं, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाके कर रहा। हमारे अंदर जो खराफात है उनको हमने देखना पड़ेगा और अपने मामला को खुद ही तय करना पड़ेगा। इससे फिर दूसरा कोई उंगली उठाए तो फिर वो अच्छा नहीं है। खुद रद्द करें इन लोगों का। पीर बन जाते हैं। मुझे तो आज तक ये फलसफा नहीं समझ आया, ये पीरी मुरीदी का। मैं खुद मुरीद हूं यार, खुद मुरीद हूं। ये आजकल जो दुकानदारियां खुली हुई हैं, हर मोहल्ले का एक पीर, हर गांव का एक पीर, हर शहर के अंदर 10-15 पीर, पीर हो गया काम। जो मस्जिद का मौलवी होता है वो कहता है वो दम दरूद लाजमी करता है। दम दरूद इनको जाने बला खे आती है, इनको वो जायचा बनता है, वो तवीज़ बनता है, वो इल्मुल अदाद है। वो तुम्हें क्या आता है मेरे भाई? ये कैसे बन गया? ये मुझे अताई हुई है, ये अता हुआ है, पीछे से आया है, मुझे अता हुई है मुझे, और तुम्हें क्या अता हुई है? इस तरह के मामले लगे हुए हैं, बस हावताब लगाया हुआ है। और इन मामलों के अंदर जो अच्छे थे, जो वाकई वो उसके अहल थे, वो भी बदनाम हो रहे हैं। जो अहल थे वो भी बदनाम हो रहे हैं।
اور اب पता है क्या, वो मर्दइयों के साथ चूंकि हम मुनाजरे करते हैं, मर्दइयों के साथ मुनाजरे करते हैं, और यार आई लव यू, ठीक है जी आई लव यू, आपको भी आई लव यू, मेरा मजाज नहीं है ये, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं मर्दइयों के बारे में बात करता हूँ, रद्द मर्दियत पे बात करता हूँ, मैं इन मौजूओं को पे कभी गुफ्तगू ही नहीं की, मेरा मौजू सुखनी नहीं है ये। बहरहाल मामला ये, मर्दइयों के साथ जब बात होती है उनको कहते हैं जी मिर्जा कादियानी जो है ना झूठा है, कज़ाब है, दज्जाल है। तो मर्दई पता है क्या कहता है, झट से वो उछलेगा, वो कहेगा जो भी सच्चे, जिन्होंने जो अल्लाह के सच्चे नबी थे उनके ऊपर इतराज़त होते ही आए हैं। यहूद नसारा भी ऐसे इतराज़त करते थे, वो तो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी इतराज़ किया, फलां के ऊपर भी इतराज़ हुआ, फलां के ऊपर भी इतराज़ हुआ, इतराज़त होते ही रहते हैं। ये मर्दई कहते हैं आगे से। तो हम फिर कहते हैं कि फिर वो उनका क्या कसूर, अब्दुल गफ़ार जंबे का, नासर सुल्तानी का, और इतने आ गए हैं आजकल जिन्होंने नबूवत के दावे किए। वो हर एक यही कह रहा है कि सच्चों को जो है ना बदनाम किया जाता है, उनको लोग जो है ना गंदा करते हैं, नंगा करते हैं। तो वो मर्दई कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो भी काफर है, वो भी काफर। बस हजरत मिर्जा जी के ऊपर तुमने अगर बात की तो वो सच्चों को जो है ना लोगों ने ऐसे ही कहा है। ये एक। अब सच्चे पीर झूठे पीर, सुनिएगा, सच्चे पीर वो तो अहल थे, एक हो गया झूठा। अब झूठे को लोगों ने छितर फेरे कि तू, तेरे अंदर ये खराबी है। अब उसने पता क्या कहा, और उसके मुरीदीन ने भी, उसने भी और उसके मुरीदीन ने, उसने ये कहा वो जो अल्लाह के वली होते हैं वो ऐसे उनको लोग करते हैं, और तुम वहाबी हो, तुम देवबंदी हो, इसलिए तुम कर रहे हो ये, इसलिए तुम करते हो, वहाबी हो तुम वहाबी हो, देवबंदी हो तुम, जो सच्ची बात करते हो वहाबी देवबंदी। अब इन लोगों ने, झूठों ने सहारा लिया सच्चों का, निकाह में छुपे हुए हैं, वही टाइटल, वही लिबादा, वही तलीमात, वही सारे मामला, दुकानदारी चल रही है, दुकानें चल रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं सच्चे बदनाम हो रहे हैं, इन झूठों ने लिबादा उड़ा है। कभी आलिम बनेंगे, अल्लामा बनेंगे, शेखुल हदीस भी बनेंगे, शेखुल कुरान भी बनेंगे, जनाबे मन पीर बनेंगे, पीरजादे बनेंगे, अपनी तंजीम अलग ही बना लेंगे, अपनी तहरीक अलग ही बना लेंगे, अपने अदारे अलग बना लेंगे, हाँ जी अपना हिसाब किताब बनाएंगे हम। ये सारा एक सिस्टम इस तरह का चल गया। कौम भी फिर पीछे बड़ी, कौम बहुत ज्यादा, कौम दर कौम चलती जाती है, फिर सिलसिले दर सिलसिले। तो इसका कोई हल नहीं समझ आ रहा, ये इसका हल क्या है। मौजू हमारा ये चला था, बात बहुत दूर निकल गई। हाथ चूमने और चमुआने पर पाबंदी लगनी चाहिए, ये मैंने मजाक किया था, मजाक किया था, और उसके ऊपर बहुत, मेरे स्टेटस के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी, जनाब वो मैं अभी कमेंट नहीं पढ़ सकता, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं। ओ भाई अकल के नौ लेने चाहिए, अकल भी तो किया कर, जज्बात ही सब कुछ नहीं है। और मुझे कोई पूछ रहा है क्यों जी, क्यों पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा मैं 2-4 पढ़ के सुनाता हूँ, क्यों पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा मैंने कहा यार मैंने फिर आगे एक और मजाक कर दिया, मैंने कहा मेरे कोई नहीं चूमता, तो वो कह रहा है तुम अपने अंदर अहलियत पैदा करो। मैंने कहा मैं सींग लगवा लूँ भाई, हाँ जी, या ऊपर लिख लूँ इधर पीर साहब, इधर माथे के ऊपर कुंदा करवा लूँ, इसलिए फिर आप चूमोगे। इनको क्या पता बेचारों के हमारे हजारों हाथ चूमते हैं, हम उनको मना करते हैं ना भाई, सख्ती से मना, ये पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ। तो इसके ऊपर बड़े लोगों ने, बड़े उलमाए कराम ने, बड़े मुफ्तियान कराम ने इसको लाइक किया, इसको बहुत अच्छे कमेंट किए। प्रोफेसर गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, दीगर उलमाए कराम ने बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हाथ चूमने और चमुआने पर पाबंदी वाकई लगनी चाहिए। क्यों चूमते हो इनके हाथ, इनको तो इस मुसाफा नहीं सही तरीके से लेने आता, सुन्नत के मुताबिक मुसाफा नहीं ये करते, सुन्नत के तुम हाथ चूमते हो उनके। ओ अच्छा एक मैं यहाँ बात करनी थी, भूल ही गया भाई, इसलिए तुम हाथ चूम रहे हो कि ये बड़ा मुबल्लिग है, बड़ी तकरीरें करता है, ये हाथ इसलिए चूमते हो कि बड़ी तकरीरें करता है ये,
बड़ी तकरीरें करता है, कुरान हदीस को पेश करता है, इसलिए चूमते हो। तो फिर तो आपके भी चूमने चाहिए। हुक्म तो आपको ये था, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे एक ही आयत हो। तुम्हें अगर एक ही आयत का पता है तो तुम मुबल्लिग हो। अगर मियार तुमने ये बना लिया कि कुरान हदीस को एक बंदा बड़ा पेश करता है, तो फिर दुनिया का हर मुसलमान उसके हाथ चूमने की वो अहलियत रखता है, उसके चूमने चाहिए। चूमो ना उसके, हर एक के चूमो, तुम मेरे चूमो, मैं तुम्हारे चूमू, ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता है। तो अगर तो ये मुबल्लिग होना इस चीज की एक अलामत है, और ये एक मियार बनाया आपने कि भैया इसके चूमने चाहिए हाथ, ये मुबल्लिग है, तो मुबल्लिग तो हर मुसलमान है। बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी जानब से, अगरचे एक ही आयत क्यों ना हो। तो एक एक आयत भी अगर आपको पता है तो उसके पहुंचाने का आपको हुक्म है, और जब आपने किसी को कोई चीज बताई तो आप हो गए मुबल्लिग, तो फिर तो आपके भी चूमने चाहिए ना, तो फिर आप भी अहल हो गए। अगर तो आपने ये मियार बना लिया, क्या मियार है हाथ चूमने चमुआने का, कोई तो थोड़ा एक मियार तो होना चाहिए ना। तो आपको फिर कहना पड़ेगा कि हाथ हम इसलिए चूमते हैं, जो अल्लाह का बड़ा मुकर्रब बंदा होता है, बड़ा मुकर्रब बंदा होता है, बड़ा उसके पास इल्म होता है, कुरान और हदीस को वो बड़ा जानता है, वो बंदा अहल है। और उस किस्म के बहुत कम है, बहुत कम। शाजो नाजर, शाजो नाजर, वो जो इस किस्म के होते हैं ना, वो तो मंजर आम पे भी नहीं आते यार, कौम से छुप के रहते हैं, वो कौम में नहीं आते, कौम से छुटकारा वो गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो तो सामने भी नहीं आते। तो ये जो कौम में आते हैं, और कौम में कौम 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 कौम, और इनके साथ भी आते हैं, अमीरों से इनकी दोस्तियाँ होती हैं, ये यारियाँ भी दोस्तियाँ अमीरों से लगाते हैं। ये वो लोग हैं कि जो हुकूमतों के, जनाब पंजाबी में एक लफ्ज़ यूज़ होता है, वो नहीं करूँगा मैं यहाँ, वो करते हैं, हाँ जी करते हैं, तो बड़े मामले ख़राब हैं। हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और हैं। तो बस अल्लाह रसूल की आप हुक्म पे अमल करें, कुरान और हदीस पे अमल करें, जो बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया हुआ है उसके ऊपर चलें, कुरान और हदीस के मुताबिक जो कुछ इरशाद फरमाया है उसके मुताबिक चलें बस। और बस अपनी ज़िंदगी पूरी करें। बहुत सख्त दौर है, फितनों का दौर है, इंतहाई फितनों का दौर है, बहुत सख्त दौर में हम गुजर रहे हैं। अल्लाह अक्ल सलीम अता करे, और जज्बात को कंट्रोल रखने की भी तौफीक अता फरमाए, और सही फैसला करने की और सही फैसले तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है जनाब, पता नहीं अब किसने क्या क्या कहा, ये बाद में पढ़ूंगा देखूंगा, लेकिन हमारे लिए भी बेहिसाब मकसद की दुआ फरमाए। सबके लिए दुआ है जी, सबके लिए दुआ, अल्लाह सबको माफ़ करे, जो लक्ष्य से लग्जश हुई है कोई किसी से, कोई अल्लाह माफ़ कर दे, कोई जाने अनजाने में कोई गलती कुताई गुनाह हुआ, छोटा बड़ा सब अल्लाह माफ़ कर दे। बड़ा सख्त दौर आ गया है, आंखें खोलें, अखां खोलो जी, अखां खोलो, मजनू ना बन जाओ, मजनू ना बन जाओ पीरी मुरीदी दे विच। मुरीद है तो मजनू में, तो पीर भी वो भी मजनू में। पीरी मुरीदी में इतने ही ना गुल जाए कि आपको पता ही ना चले कि कहाँ कुरान का असूल टूट रहा है, कहाँ हदीस का असूल टूट रहा है। अल्लाह रसूल ने कुछ और कहा था, ये पीर कुछ और कह रहा है, कर कुछ और रहा है, तो आप लगे हुए हैं। तो अखा खोलो, ध्यान करो, अखा चार रखो। झूठे गुस्से हैं, बड़े ही गुस्से हैं। तो अभी लगता है सिग्नल भी ड्रॉप हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।